Good morning to everybody. It's me, Prita Sir from Tapasvi Classes, Junagadh. In the last lecture, we have started a new topic which is in class 11 as well as in class 12, NCERT English medium, right? And the name of that topic is data interpretation, or it's called data analysis. Now, what will be given in the question? Maybe out of the 5 things, maybe anything. For take an example, it may be table or a chart or a graph or a pie chart or a tree diagram or a picture or a map, anything, any non-verbal information will be given in the paper. Okay. Now what you have to do is to take that information, grasp that information, understand that information, and write it down in your own sentence structure with the help of that information. 9 to 10 sentences you have to write it down, but do not count the sentences and do not give the numbers as 1 or 2 or 3 or 4, but you have to write it down in a paragraph, one paragraph, 10 or 12 sentences in a one paragraph. That's called the data interpretation, or it's called data analysis. Again, I would like to tell you, it's in 11 as well as in 12, right? In both the standard, in both the class, and it will cover not only 11 but also 12, right? So write it down carefully, neatly in your fair book, right? सब कुछ सही तरीके से लिखिएगा अपनी फेयर बुक के अंदर, क्योंकि ये 11th स्टैंडर्ड में भी है और 12th स्टैंडर्ड में भी है यही टॉपिक, और ये अनसीन होता है. कौन सा टेबल आए पता नहीं, कौन सा पाई चार्ट आए मालूम नहीं होता, कौन सा ग्राफ आ जाए पता नहीं होता. तो ये अनसीन होता है, इसको आपको समझना होगा. फिर उसको उसमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई होती है उसका यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है. ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस होने चाहिए, राइट? तभी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, राइट? वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द फर्स्ट टेबल. नाउ हियर आई हैव गिवन टू यू सेकंड टेबल. फर्स्ट, रीड आउट द इंफॉर्मेशन what is given in the second table. Read the following table and interpret it in 9 or 10 sentences. The heading is given different activities of a well-known athlete. Here, different activities are given of a well-known athlete on a particular day. That day was February 4, 2019, Friday. It was Friday, Feb 4, 2019, and on that day, what well-known athlete had done has given to us, right? Now, take this information in the mind and write it down a paragraph, right? This is called data interpretation or data analysis, okay? Now, events given and time of happening of this event. इवेंट दिया हुआ है और ये इवेंट कब हुआ उसका टाइमिंग दिया हुआ है. तो हमको ये इंफॉर्मेशन का यूज करके एक पैराग्राफ लिखना है जो 9 और 10 सेंटेंसेस होने चाहिए, राइट? तभी हमको पूरे मार्क्स मिलते हैं, और ग्रामेटिकली ये परफेक्ट होना चाहिए. तो पहला दिया हुआ है कोचिंग. तो ये कोचिंग कब करते हैं? तो 7 AM 4 फरवरी की बात है, फ्राइडे 2019 को कोचिंग 7 AM सुबह के 7 बजे. स्नैक्स और टी कब लिया? 9 बजे सुबह. इनॉग्रेशन ऑफ अ स्पोर्ट्स मीट, यानी स्पोर्ट्स इवेंट का इनॉग्रेशन दैट्स कॉल्ड उद्घाटन करना, राइट? शुभारंभ करना. तो शुभारंभ करा कब कितने बजे? 9:30 AM सुबह को. अटेंडिंग अ सेमिनार में उसने एक सेमिनार को अटेंड किया, वो वहां हाजिर रहे. 10:30 को वो सेमिनार था. लंच लिया दोपहर को 12:30, राइट? 12:30 को.
प्रेस कॉन्फ्रेंस की 3:30 को। ये 6 इवेंट्स दिए हुए उस पर्टिकुलर डे के। नाउ टेक दिस इंफॉर्मेशन एंड राइट इट डाउन in your own sentences, okay? But mind that the grammatically it should be perfect, otherwise you can't get the marks, okay? This diary page of February 4, 2019 is of Mr. Ritu Roy, a well-known athlete, coach of Gujarat State. गुजरात स्टेट के फेमस यानी वेल नोन एथलीट कोच है मिस्टर रितु रॉय। उसके बारे में यहां नाम नहीं दिया है, हमने नाम ऐड कर दिया। कोई भी नाम ऐड करो नो करो चलता है, राइट? ऐसे नाम ऐड किया है, नहीं किया हुआ तो भी चलेगा, ओके? ये डायरी पेज है Feb 4 का 2019 का, राइट? रितु रॉय नाम दिया हुआ है, वेल नोन एथलीट कोच है गुजरात स्टेट के। उसका अगर आपको नाम नहीं देना है, ओके चलेगा, आप सिर्फ इतना ही लिखिए वेल नोन एथलीट है, उसके बारे में द डायरी पेज दिया और उसके बारे में इवेंट्स दी हुई है ऑफ February 4, 2019 की, राइट? और फ्राइडे की, तो ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू हिज शेड्यूल, ये शेड्यूल के मुताबिक, इन शेड्यूल के मुताबिक ही कोच्ड द स्टूडेंट्स को उसने कोचिंग किया। कब कोचिंग किया? तो क्या ऑफ गांधीनगर फ्रॉम 7 AM to 9 AM। गांधीनगर के स्टूडेंट्स को उसने कोचिंग किया। अब आप गांधीनगर के स्टूडेंट्स नहीं लिखोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, राइट? उसने कोचिंग किया 7 बजे, यही इंफॉर्मेशन है, राइट? तो अब 7 बजे से लेके 9 बजे तक ऐसे कोचिंग किया, ऐसे लिखो। 7 बजे से लेके 8:30 तक कोचिंग किया, ऐसे लिखो। 7 बजे से लेके 8 बजे तक कोचिंग किया, ऐसे लिखो। लेकिन कोचिंग तो स्टूडेंट्स को ही किया होगा, राइट? तो अकॉर्डिंग टू हिज शेड्यूल, उसके शेड्यूल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द इवेंट्स, अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल, राइट? टेबल में जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके मुताबिक he coached the students of Gandhinagar from 7 AM to 9 AM, okay? He gave important tips for short and long running. ये हमने हमारे मुताबिक हमने ऐड कर दिया, क्योंकि कोचिंग दिया तो कोचिंग में कुछ टिप्स तो दी होगी, कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइसेस दी होगी, सजेशंस दिए होंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे। आप ये सब ऐड कर सकते हैं इसमें, राइट? कि he gave important tips, important suggestions, important instructions while coaching, during coaching, right? उसका कोचिंग के दरमियान उसने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए, सजेशंस दिए, ये सब आप लिख सकते हो। He also made them run for practice. उसने उन सब स्टूडेंट्स को रन करवाया प्रैक्टिस के लिए कि आप दौड़िए, आप भागिए। तो ये सब कोचिंग में हुआ। आप उसमें कोचिंग में क्या हुआ वो सब ऐड कर सकते हो, राइट? क्योंकि हमको तो सिर्फ यही इवेंट दिया हुआ है, कोचिंग किया 7 बजे। अब कोचिंग में क्या हुआ वो भी आप ऐड कर सकते हो, ओके? तो ये दोनों सेंटेंस उसी में ऐड हुए। एट 9 AM, 9 बजे, he took his snacks and tea। 9 बजे उसने स्नैक्स और टी लिया, राइट? अब स्नैक्स और टी 9 बजे लिया। अगर आपको लिखना है तो किसके साथ लिया वो लिख सकते हैं आप, राइट? अदरवाइज कोई और सेंटेंसेस बनता नहीं है इसमें। इनॉग्यूरेशन स्पोर्ट्स मीट का किया उसने, और ये 9 बजे के बाद आफ्टर दैट ही इनॉग्यूरेटेड अ स्पोर्ट्स मीटिंग एट मोटेरा। कहाँ किया ये लिख सकते हैं, तो ये मोटेरा में किया, राइट? मोटेरा में उसने स्पोर्ट्स मीटिंग का एक जो इवेंट था उसका इनॉग्यूरेटेड शुभारंभ किया, उद्घाटन किया। तो ये ऐसा आप लिख सकते हैं। सुन आफ्टर दैट, उसके बाद में ही उसने अटेंड की सेमिनार, राइट? तो सुन आफ्टर दैट ही अटेंडेड अ नेशनल लेवल स्पोर्ट्स सेमिनार फ्रॉम 10:30 to 11:45। कितने बजे से कितने बजे तक उसने अटेंड किया ये हमने लिखा, राइट? नेशनल लेवल का स्पोर्ट्स सेमिनार था, ये हमने ऐड करके लिखा। तो इधर तो सिर्फ इतना ही दिया है कि सेमिनार उसने अटेंड किया, राइट? आप ये ऐड कर सकते हो, अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, राइट? कि कौन सा सेमिनार था, इधर नेशनल लेवल का था, आप स्टेट लेवल का लिख सकते हो, राइट? आप डिस्ट्रिक्ट लेवल का लिख सकते हो। फिर
लंच लिया, ये होगा, राइट। ही ऑल्सो प्रेजेंटेड हिज पेपर्स देयर, लेकिन उस सेमिनार में उसने पेपर्स भी प्रेजेंट किया। ही शोड हिज प्रेजेंटेशन देयर, उसने अपना प्रेजेंटेशन शोड किया, ये लिख सकते हो, राइट। ये कुछ भी ऐसा कुछ ऐड करके आप लिख सकते हो। एट 12:30 PM, दोपहर को 12:30 पर ही हैड लंच, उसने लंच लिया और रेस्ट फॉर 2 hours, और 2 घंटे उसने रेस्ट किए। देखो, लंच लेने के बाद 2 घंटे उसने रेस्ट किए, राइट। फिर ही अटेंडेड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ही मेड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, राइट, ओके, और ही वेंट फॉर अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एट 3:30 को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए। एक कुछ भी ऐसा, ये पूरी इंफॉर्मेशन का ऐसे यूज करके एटलीस्ट 10 to 12 सेंटेंसेस आप बनाना ही होगा, राइट। आपको बनाना ही होगा 10 to 12 सेंटेंसेस, और ये परफेक्ट होने चाहिए ग्रामेटिकली, सो दैट यू कैन गेट द फुल मार्क्स, अदरवाइज यू कांट, राइट। तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। ये क्लास 11 के लिए भी है और ये क्लास 12 के लिए भी है। ये अगेन मैं बोल रहा हूं, दिस इज जस्ट नॉट फॉर क्लास 11 बट ऑल्सो फॉर क्लास 12 English medium students, right? English medium students, NCERT, okay? Now take a screenshot. Screenshot निकाल लिए and write it down very neatly in your fair book, okay? अपने फेयर बुक पर ये अच्छी तरह से लिखिएगा, राइट। अच्छी तरह से फेयर बुक पर लिखिएगा, ओके। यहां तक हम रखते हैं। हैव अ नाइस डे, गुड बाय और छोटा